اللہ تعالیٰ ماں جی آپ کے لیے آسانی کا معاملہ کرے اور صبر دے، صبر کریں۔ ثاقب آپ کا بیٹا ہے؟ کون سے نمبر کا بچہ تھا؟ بڑا تھا چھوٹا تھا؟ نہیں، 2 بیٹوں اور ایک بیٹی سے چھوٹا تھا۔ اللہ آسانی کرے۔ کیا ثاقب بھی باہر لڑا تھا اس رات؟ نہیں بھائی۔ کیا واقعہ ہوا تھا؟ وہ ادھر نا بھٹورے بنا رہے تھے، وہ لیٹر لگا رہا تھا۔ عید میلاد النبی کی رات؟ عید میلاد النبی کی رات۔ اچھا جی۔ ادھر اس کے کپڑے استری کیے، کپڑے چینج کرنے آیا، ادھر باہر آیا تو بچے لڑ رہے کسی کے، اس کو چھڑایا، چھڑاتے اس کی۔ یہ لڑنے والے جو بچے تھے ان کی عمریں کیا تھیں؟ نہیں مجھے نہیں پتا، میں کبھی باہر نہیں نکلی، کبھی باہر جاتی نہیں، اگر میں باہر ہوتی تو میں چھری خود کھا لیتی۔ ہائے اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے۔ آپ لوگوں کو کب پتا چلا کہ لڑائی شڑائی بار کوئی ہو گئی ہے، کوئی حملہ ہو جب گیا؟ شور ہوا نا، میری بیٹیوں نے اوپر سے دیکھا، کہتے ماں جی وہ ثاقب کو مار رہے ہیں۔ میں فٹافٹ میں نے چادر پکڑی، نقاب کیا، باہر گئی، لوگوں نے چھڑوایا، میں بچوں کو 3 بیٹوں کو لے کے گھر آ گئی کہ بیٹے کیا ہوا۔ ثاقب اس وقت زخمی تھا؟ اس وقت اس کی قمیض پھٹی تھی، مجھے زخم نہیں نظر اس کا آیا۔ ہاں میں اندر لے آئی ہوں، بعد میں نا وہ جو دوسرا اس کا دوست تھا اس کو چھری لگ گئی۔ ہاں جب اس کو چھری لگی، اس کو پکڑنے باہر گئے، اس کو جاتی انہوں نے۔ اچھا ثاقب جب دوبارہ باہر گیا تب اس کو مارا؟ جی، انہوں نے پہلے اس کو ڈنڈا مارا سر میں، بعد میں اس کو چھریاں مار دی۔ اللہ معاف۔ تو آپ نے ثاقب کو روکا نہیں باہر جانے سے؟ بس وہ اس کے دوست کو چھری لگی، اس کو پکڑنے گئے باہر۔ اوہ ہوئے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے۔ ابھی پولیس نے اس پہ کیا کام کیے؟ کوئی لڑکے پکڑے گئے ہیں؟ کوئی آپ کے پاس چل کے آیا؟ کسی نے آپ کو بتایا کہ ماں دکھی ہے، اس کی جا کر دکھ بانٹنا کچھ نہیں چاہیے؟ پتا، کچھ نہیں بتایا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہرحال ایک تکلیف کی گھڑی ہے، دکھ کی بات ہے۔ ثاقب کے والد بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماں اوبویسلی تکلیف میں، بڑے دکھ کی اور تکلیف کی یہ گھڑی ہے جی، اور اللہ تعالیٰ ایسی بدبختی والی گھڑی سے پناہ عطا فرمائے۔ وجہ کیا ہے کہ بڑوں کا کردار بڑا ہوتا ہے۔ ایک دور ہوا کرتا تھا جب بڑے اپنی کرتوتوں سے پہچانے جاتے تھے، لیکن آج بڑے اپنے چھوٹوں سے زیادہ چھوٹے ہیں، اور یہ بدبختی ہے۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ مقتول ثاقب کا بھائی مضروب بلال ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بلال زخمی ہے اور اس کو ضربیں لگی ہیں اوبویسلی، اور یہ بدبختی کا معاملہ جو ہے اس علاقے میں، تخت لاہور کا جو ایک اہم ترین علاقہ ہے، یہ ایک بڑی خوبصورت رات میں ہوتا ہے جب پوری امت کا ایک بڑا طبقہ عید میلاد النبی کا جشن منا رہا تھا۔ اس لمحے یہاں شیطان دندنا رہا تھا، شیطان ان گلیوں پر وارد تھا، اور یہاں لوگوں کو ان کی انا کی لڑائی لڑنے پر ابھار رہا تھا۔ ثاقب کا قصور یہ تھا کہ اس نے 2 بچوں کو شرارت کرتے ہوئے اور لڑائی کرتے ہوئے گلی میں منع کیا تھا۔ بڑے ڈانٹتے ہیں اور بھگا دیتے ہیں تاکہ کسی کو چوٹ نہ لگ جائے، لیکن انہی میں سے ایک بچہ اپنے کسی بدبخت عزیز کو، اپنے چاچا کو غالباً لے کر آتا ہے۔ ایک بار حملہ وہ کرتے ہیں، پھر دوسری بار حملہ کرتے ہیں، اور مزید لوگ لا کر تیسرے حملے میں 15-16 کے قریب بتائے جا رہے ہیں لوگ آتے ہیں، اور وہ باقاعدہ ثاقب کو قتل کر دیتے ہیں۔ بلال بھی زخمی ہوا۔ بلال کیا دیکھا آپ نے سارا واقعہ؟ میں ریکویسٹ میری یہ ہوگی کہ منوعن بتائیے گا جو چیز جیسے تھی، جو آپ نے دیکھی یا جو چیز آپ تک پہنچی۔ میں باہر سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کی بازو کا کیا حال ہے؟ کچھ بہتر ہے، درد ویسے ہی ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ ہڈی بچ گئی ہے؟ ہاں جی، ہڈی کوئی بچ وین چین تو نہیں کٹی؟ نہیں، چلو شکر ہے۔ پٹھے وغیرہ سے درد ہوتا ہے۔ پٹھوں کی ہے؟ چلو بسم اللہ کیجیے، مائک قریب کریں۔ تو میں نے دیکھا یہ کہ 2 بچے لڑ رہے تھے میرے سامنے، تو ایک لڑکے نے کہا ثاقب چھڑوائی ذرا یار۔ ثاقب نے دونوں بچوں کو الگ الگ کر دیا، چھڑوا دیا، ایک کو ایک گلی میں بھیج دیا، دوسرے کو دوسری گلی میں بھیج دیا، نس جو دوڑ جو ہاں جی بھگا دیا۔ تو ایک لڑکا جو ادھر فیضان کا کچھ لگتا تھا، بھتیجا تھا، تو اس نے جا کے اپنے چاچو کو بتایا جی مجھے نا انہوں نے ڈانٹا ہے۔ وہ
अपने दफ्तर में बैठे हुए थे, अंदर से निकले, फजान निकला, इशफाक निकला, दोनों साकिब की गिरेबान को पकड़ लिया। इस इलाके का कोई कंटूटा है क्या है? फैज़ान केबल का काम करता है, वैसे अकड़ में रहता है, हर मोहल्ले के हर लड़के से। केबल का काम करने वाले लोग ने उनमें से 12, हाँ जी। उन्होंने रिकवरियां करनी होती। फैज़ान हाँ का जी। काम रिकवरी तो नहीं, रिकवरी करना उसका तो बस काम। वो जो रिकवरी करने वाले होते हैं उनको दाबा शाबा मारने का शौक भी होता है। हाँ जी। चलिए आगे। तो वो निकला है, फैज़ान और इशफाक निकले हैं, दोनों साकिब की गिरेबान को पकड़ लेते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। मेरा भाई भी था, मैं फिर भी उनको रोक रहा हूँ कि क्या बात हुई है, क्या मसला है, किस वजह से आप जो कर रहे हो। मैंने छुड़वाया, मुझे ये दुकानदार ने मना भी किया है कि यार बिलाल छोड़ दे। मैंने दोनों हाथ खड़े करके कहा ये देखो मैं तो छुड़वा रहा हूँ, मैंने इनको मारा नहीं है, यहाँ ना लड़ भी नहीं रहा मैं इनसे, मैंने छुड़वाया इनको। तो एक जो उनका बच्चा है ऐनक वाला, जिसने अपने चाचू को बताया होता, वो मेरे गिरेबान को पकड़ा होता उसने। उस बच्चे की उम्र क्या है? तकरीबन कोई 12-13 साल उम्र है इसकी। यानी वो बच्चा जो 12-13 साल की उम्र में गली में एक शख्स को लड़ाई से मना करने पर गिरेबान पकड़ा है जी। वो कल को आप इमेजिन करें नाजरीन कि वो क्या चीज़ बन के बरामद होगा, जिसने यहाँ पर एक बंदे की जान जिसकी वजह से चली गई और 4 लोग जख्मी हैं, और मेरे ख्याल से कोई 10-12 लोग जो हैं इसमें मारने वालों में शामिल हैं, जिसने इतना बड़ा एक बखेड़ा खड़ा कर दी है। आप इमेजिन करें कि अगर उसको ना रोका गया, उसकी मैं तो कहूँगा कि भाई उसके माँ और बाप का कसूर है। अगर ना रोका गया तो वो तो कल बड़ा अजाब बनेगा इलाके के लिए और अपने ख़ानदान के लिए खुद। अच्छा जी। तो उनसे छुड़वाया मोहल्ले वालों ने, छुड़वा के मैं साकिब और फ़हीम भाई को घर ले आया हूँ। ठीक है। तो लड़ाई ख़त्म हो गई। बाहर से 2 मिनट के बाद ऐसे शोर आता है जैसे हमारे किसी साकिब के दोस्त को या कज़न को ना उन्होंने पकड़ा होता है। अच्छा। चीखने बाहर निकला। हाँ जी, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। मैं बाहर निकलता हूँ अकेला ही, उनमें से जाकर उनको मैं रोकता हूँ। मैं कहा यार जो बात है बैठ के बात कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन मेरे से जब मैं बाहर निकला होता हूँ तो साकिब और फ़हीम बाहर आ जाते हैं, दरवाजे पे बाहर खड़े होते हैं, तो उधर से भागते हैं। जब आप बाहर निकले हैं आप पर तो किसी ने हमला नहीं किया? नहीं। यानी आप पर हमला मकसूद ही नहीं था, मकसूद साकिब पर हमला। जी। ठीक है। तो बसास भी उसको रोकता है, उसको मना करता है, उसकी दाढ़ी को हाथ लगाता है, यार सदीक छोड़ दो, आप बड़े हो, मस्जिद में हमारी मुलाकात होती है, ना करो ऐसे यार, भैया हमारा छोड़ दो। वो छुड़वाते उसके पेट में चाकू लगा देता है उसको, बसास को। बसास वैसे ही दीवार के साथ, पहला चाकू बसास को लगा। जी, बसास वैसे ही दीवार के साथ लग जाता है। तो मैं सदीक को मना कर रहा होता हूँ, रोक रहा होता हूँ, 2 लड़के आते हैं मेरे गिरेबान को। पता चल गया तो बसास को चाकू लग गया? नहीं, बसास को मैं देख रहा था, मैं दूसरों को मना कर रहा था, मैं बसास को देख रहा था, सदीक को रोक रहा है। बसास को चाकू लगता है तो मैं सदीक की तरफ होता हूँ, उसको मना करता हूँ, रोकता हूँ। वो इतने रोकते ही 2 लड़के आके मेरे गिरेबान को पकड़ लेते हैं। अच्छा। मेरे गिरेबान को पकड़ते हैं, मुझे मारना शुरू करते हैं, लेकिन मैं उनसे बचता हूँ। पीछे से सदीक ने मुझे वार किया, मेरी कमर बैक साइड से। किस जगह मारने की कोशिश की? मेरे बैक साइड पे, दिल वाली साइड पे मारने की कोशिश की। मेरी बाजू पे लग गई। अच्छा, ये बाजू पे लग जी। ठीक है। मेरी बाजू पे लगती है तो मेरा ब्लड निकलता है। पागल थे, जंगली थे, क्या थी कि नशे में थे, क्या मामला था? वो नशे में थे। हाय, मरवा गया ना नशा। अच्छा जी, फिर? ये पता नहीं नशा कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, लेकिन नशा करते हैं। पूरी तैयारी में आए हैं, कत्ल करने की तैयारी में आए हैं। मुझे चाकू लगाया। उसके बाद साकिब अंदर आ गया हुआ था। साकिब को नहीं पता था कि बाहर क्या मामला हो? साकिब वहीं पे था, बाहर ही था, बाहर आ गया हुआ था। हाँ जी। जब चाकू मेरे लगा, बच्चों ने कहा बिलाल भाई का खून निकला है। मेरे बड़े भाई ने, फ़हीम ने मेरा बाजू पकड़ा, इधर साथ ले गए। 2 मोहल्ले के लड़के थे सामने घर वाले, उन्होंने हमें खींच के अंदर डाल दिया, घर में डाल दिया ताकि बचाया जाए। हाँ जी, हमें बचाया। अंदर से भी दरवाज़ा बंद कर दिया, बाहर से भी दरवाज़ा बंद कर दिया, हम बाहर आ नहीं सके। साकिब बाहर ही रह गया। जब साकिब बाहर रह गया, फिर उधर से इशफाक आया। इशफाक के हाथ में बाला था, इशफाक ने बाला लगाया उसके सर पे, साकिब के। जी, वो उस टाइम बौंदल गया था, उसको समझ नहीं आई कि मैं अब क्या करूं। फैज़ान ने उसकी बाजू पकड़ी हैं, दोनों बाजू पकड़ी हैं, और सदीक ने उस पर वार करने शुरू कर दिए।
मैं खुद देख रहा था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ी दिल दहला देने वाली हैपनिंग है नाज़रीन, और मैं इस स्टोरी को कवर करने का एक नेशनल स्क्रीन पर वाहिद मकसद ये है कि हम जज्बात को काबू रखने की कोशिश ज़रूर किया करें, क्योंकि हमारे अब वो घर भी अजाब में हैं जिन्होंने मारे हैं, इनका तो सब कुछ लुट गया, सुकून से वो भी नहीं बैठे हुए, कारोबार बंद, घर से मफरूर, थानों के चक्कर, कानूनी मामलात, कितना अरसा ये चलते हैं, क्या क्या होगा गॉड नोज बेटर। इनका कह देना नहीं तो बेड़ी बो देती है। गाली गलौज सर उन्होंने शुरू कर दी। मैंने तो सर मलेदार था, मैं सर उनको समझाया, मैंने कहा ऐसा हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, बस उनको छड़वाया ही है, तो लिहाजा ये ईद मिलाद नबी की पाक रात है, छोड़ दें आप, कोई शर्म ना आई उसको, कोई शर्म ना आई, अल्लाह के लिए माफ़ कर दें। लेकिन सर जो उसका सर चाचा था, एक और चाचा उसका सर, वो आया, उसने सर अपनी कमीज़ उतारी है, उसने सर खंजर पकड़ा था अपने हाथ में सर, चाकू। मैंने उसका नाम क्या था? उसका नाम था सर सदीक साहब। जी सर, सदीक साहब। सदीक ही केबल का बिजनेस का मालिक है? नहीं सर, वो सर उसका भाई था, फिजान अच्छा, का। फैजान का भाई है, ठीक है। सदीक आया, ये तो आए तो सर सारे भाई थे, लेकिन सर सदीक के पास सर खंजर था सर। उसने सर, मैं उसके आगे गया हूँ, मैंने कहा ये नमाज पढ़ता है, मेरी वो उसके साथ बहुत अच्छी दुआ सलाम भी थी। अच्छा जी सर, मैंने उसको सर समझाया, मैंने कहा अल्लाह के लिए माफ़ कर दो, आज पाक रात ईद मिलाद नबी का दिन है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन ऐसा ना करो। उसने सर, मैंने सर उसकी दाढ़ी पे हाथ लगाया, उसने सर मेरे भी खंजर मार दिया। पहला खंजर आपको? जी सर, पहले सर उसने मेरे खंजर मारा सर। साकिब सर अंदर था सर, उसको लगा कि मेरे भाई और मुझे उन्होंने मारा है खंजर, वो सर बाहर निकला सर, ये लोग सर उसकी तरफ भागे सर गली में, इन्होंने सर उसको सर पर बड़ी बेदर्दी के साथ सर उसको छुरियाँ मारी ऊपर बैठकर सर इन्होंने सर। बहरहाल जी, ये बदबख्ती यार ये एक इलाके की नहीं है, हमारे यहाँ हम इतने इगोइस्टिक हो गए हैं, हम इतने नापसंद हो गए हैं कि हम किसी की जान को कोई कीमत उसकी नहीं समझते, हम जान लेना गाली कोई नहीं, और इस पर बड़ा फख्र कर रहे होते हैं। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आज मेरी बात शायद किसी को बुरी लग जाए, अब वो माएँ नहीं रही हैं। माँ अपने बच्चे से पूछा करती थी कि पुत्र की करके आए हैं ते किंदा मुंह काला करके आए थे, आपदा कितने गंदा किता ही। आज माँ कहती है मेरा शेर पुत्र, जब कोई जुल्म करके आता है तो माँ उसको थपकी देती है, जहां जिंदा रहे। तो घर में अकाउंटेबिलिटी और एहतसाब का निजाम खत्म हो गया। ना आज बहन पूछती है कि भरा किंदे ते जुल्म करके आए हैं, बाप हाय, मैं नेशनल टेलीविजन पर ये बात करने लगा हूं, बाप जैसा चालू इंसान आज इस मुआशरे में रहा कोई नहीं है कि बेटे का एक दबका और बाप जमीन पर। जब तक हम अपने घर में अकाउंटेबिलिटी को स्टेबलाइज नहीं ना करेंगे, ये मामलात होते रहेंगे। मैं इस पर बिल्कुल भी ये नहीं तवक्को कर रहा कि कल नहीं होंगे, ये दोबारा होंगे, क्योंकि हमने अपने वो माँ बाप, वो बहन भाई, वो नजर रखने वाले रिश्ते खो दिए, क्योंकि अब हमें नजर रखना पसंद नहीं है। हम कहते हैं किसी की जरूरत हो कि मुझ पर नजर रखे, ये बदकिस्मती है। अल्लाह ताला से पनाह मांगते हैं कि अल्लाह ताला बुरा वक्त हर किसी की जिंदगी से टाले, और वो एक लम्हा जिसमें इंसान जालिम हो जाता है, इंसान रजील तरीन हरकत करने पर आमादा हो जाता है, अल्लाह की पनाह। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम।